Today is a special Sunday, and so I have titled my word as to start a blessing. आज के दिन मैंने अपने sermon का टाइटल रखा है आशीष की शुरुआत करें। Now, in life, we've heard a lot that people start a business, start a new life with a marriage partner, start to live in a new city. There are a lot of starts in our life. अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग शुरुआत करते हैं अपने जीवन में। वो किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शादी से शुरुआत करते हैं, एक नए शहर में जाके शुरुआत करते हैं। But today I want to tell about how you can start a blessing in your life. और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप आशीष की शुरुआत अपने जीवन में कर सकते हैं। And not only for your life, और सिर्फ अपनी जीवन के लिए नहीं, but for the generations to come in the future. पर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी। Some of you might say, Pastor, you're talking about the next generation when I'm not even married yet. और आप मुझसे कहेंगे कि पास्टर आप नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, पर मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। But today I want to tell you a secret of blessing is to start a blessing today. और आज मैं आपको आशीष की एक कुंजी देती हूँ, वो है कि आज से शुरू करें। We have to look back and see sometimes where we are in our life today is because of a praying mother or a praying grandfather or a relative you didn't even know who did good deeds in their life and the blessings you are sowing today. और आज के दिन अगर हमारे जीवन में आशीष है, हम बचे हुए हैं, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे माता पिता को या हमारे दादा को जो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, या उन लोगों के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने अच्छे काम करे थे। Sometimes we are reaping what other people sowed before us. और कभी कभी हम वो चीज़ काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोया था। In the same way, there are negative things also that have come down in our family history. और बहुत सारी नकारात्मक बातें भी हैं जो हमारे परिवारों के अंदर आई हैं। Like addictions, anger problem, and you have some health issues, things like that. और जैसे कि कोई एडिक्शन हो गया, या आपको गुस्से की शिकायत हो सकती है, या कोई भी अलग तरीके की बात जो आपके जीवन में हो जो अच्छी ना हो। But I have a good news for you today. पर मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाती हूँ आज That it can stop with you the negative things. और कि वो नकारात्मक चीजें आपके जीवन में रुक सकती हैं। You can set a new course for your family and for your next generation. आप अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए रास्ते को बना सकते हैं। People in your future will say, because of this person, my future has been better. और लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा भविष्य ठीक हो गया है। I want my children to say tomorrow, because of mommy, things are better for us today. और मैं अपने बच्चों से ये बात सुनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की वजह से मेरे जीवन में चीजें अच्छी हो गई हैं। We have heard a lot about generational curses. हम लोग ने एक जनरेशनल कर्सेस के बारे में बहुत सुना है, But there is also something called as generational blessings. पर एक और चीज होती है, वो है पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष। You know, God keeps every account of every little detail that you do in your life. क्या आपको पता है परमेश्वर हर एक चीज जो आप करते हैं उस चीज का एक अकाउंट लिखता है। The times when you had to forgive someone even though you had some bitter words to say to them. और शायद आपको किसी व्यक्ति को माफ करना पड़ा हो जिसके लिए आपके मन में बहुत सारी कड़वाहट थी। Or it could be a time in your life when you worked so hard and no one gave you a credit. और शायद वो समय था जब आपने बहुत मेहनत करी पर किसी ने आपको उसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया, उत्साहित नहीं किया। And there could be times when you worked hard in your life and no one approved of you, no one complimented you. और शायद आपके जीवन में वो समय रहा हो जब आपने कुछ अच्छी चीजें करी हो पर किसी ने आपको उसके लिए तारीफ नहीं करी। Maybe you were overlooked and you were sidelined. शायद आपको नजरअंदाज कर दिया गया हो अपनी जिंदगी के अंदर। Now today I want to say Pastor John and I, we come from a pastoral family background. अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं हूँ और जो पास्टर जॉन हैं वो दोनों एक पासबानों के परिवार से आते हैं। Pastor John's grandfather started a church many years ago. और पास्टर जॉन के जो दादाजी थे उन्होंने पहले कलीसिया की स्थापना कर दी बहुत साल पहले। When they started, there was a time in their life
where they did not even have food to eat. और उनके जीवन में जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उनके पास एक समय था जहाँ पे उनके पास खाने के लिए भी नहीं था And they had many children. और उनके बहुत सारे बच्चे थे। Sometimes they would just drink hot water at night so that they don't feel the hunger. और कभी-कभी वो रात में सिर्फ गर्म पानी पी लेते थे जिससे कि उनको भूख ना लगे। And on the third day, going hungry, Pastor John's grandfather, he fell down flat on his face and he said, God, I cannot go hungry. I cannot make my wife go hungry, my children hungry. Please provide for me. और जब 3 दिन हो गए थे उन्होंने कुछ खाया नहीं था तो वो उस समय बेहोश हो गया और वो उस समय परमेश्वर के आगे आके गिरे और उन्होंने कहा परमेश्वर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे रहें। And so happened, as soon as he finished praying, there was a knock on the door. और ऐसा हुआ कि जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करना खत्म किया एक दरवाजे पे खटखटाहट हुई And then someone asked him, Are you the pastor? और फिर किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप पासवान हैं? They said, Yes, I am a pastor. तो उन्होंने कहा हाँ मैं पासवान हूँ। They said, Someone has sent food for you. उन्होंने कहा कि किसी ने आपके लिए भोजन भेजा है। He said, Are you sure this is the pastor? Because there is another pastor down the lane. और उन्होंने कहा कि क्या ये सच है कि इसी मेरे लिए ही भेजा है क्योंकि एक और पासवान है जो गली के उस तरफ रहते हैं। He said, No, is your name Pastor Job Nana Prakasam? और उन्होंने कहा कि आपका क्या नाम पास्टर जोब Nana Prakasam. नाना प्रकाशम है? He said, Yes. तो उन्होंने कहा कि हाँ। They said, No, there is a family and they had a wedding and nobody came for that wedding and so much food is left over that they've asked us to send all the food to you. और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं एक वहाँ पे वेडिंग थी और उस वेडिंग में कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा जितना भी खाना है वो सब लोगों के घर में दे दो। And that day the Lord said to him, From today onwards you will never see hunger in your life. और उस दिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि आज के बाद तुम अपने जीवन में कभी भी भूखापन नहीं देखोगे। Even my father, Pastor Stephen, और मेरे पिता जो है पास्टर स्टीफन he went to plant a church वो एक कलीसिया की स्थापना करने गए with just a little briefcase, और एक छोटे से ब्रीफ केस को लेके with torn shoes और फटे हुए जूते थे and few hundreds in his pocket. और कुछ 100 रुपए उनके पास थे जेब में। God told him where to go and plant a church. परमेश्वर ने उनको बताया कि उनको कहाँ जाना है, कलीसिया की स्थापना करनी है। And there were a lot of times, like I said, he went hungry too. और बहुत समय उनके जीवन में था जब वो भूखे रहे। And one time he was invited for dinner. और एक बार उनको खाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया गया। So that time my dad and mom were happy because at the moment they did not have food to eat. क्योंकि उस समय मेरे माता पिता के पास खाना नहीं था। And so that day they went to that house and that house was on the top of a hill. I come from a mountain region. और वो जब उस जगह पे गए तो वो घर जो था वो पहाड़ पे था क्योंकि मैं एक पहाड़ वाले शहर से आती हूँ। So as soon as they reached there, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं the family said, We are sorry, but we have no food for you वो today. कहते हैं कि हमारे पास कोई भोजन नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। My mom and dad, they smiled. और मेरे मम्मी पापा वो दोनों They मुस्कुराए said, No problem, and they came home. और उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है और वो घर वापस आ गए। But that night, और उस रात में they cried out to God. उन्होंने परमेश्वर के आगे अपने They आंसू said, बहाए। God, we've come to serve you. उन्होंने कहा परमेश्वर हम तेरी सेवा करने आए हैं। And so, Lord, please provide food for us. और उन्होंने कहा परमेश्वर हमारे लिए तू भोजन मुहैया करा। And the next day, God provided food. और अगले ही दिन परमेश्वर ने उनके लिए भोजन मुहैया And किया। God promised them the same thing. You will never see hunger again. और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम कभी भी भूखमरी को अपने जीवन में नहीं We देखोगे। are the children and grandchildren. Well, we've never faced hunger because of the prayers our ancestors made. क्योंकि हम उनके नाती पोते हैं, हम उनके बच्चे हैं और हमने कभी भी अपने जीवन में भूखापन नहीं देखा क्योंकि प्रार्थनाएं जो उन्होंने करी थी अपने समय में। So it's time to start a blessing in your life. तो ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में भी एक आशीष की शुरुआत करें। I want you to be the starter of blessing for your life and your family and your generations to come. और मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीष की शुरुआत करें। I would like to use a biblical example as well. और मैं इसके लिए एक वचन में से उदाहरण देना चाहती We've हूँ। all heard of Abraham. हम सब ने अब्राहम के बारे में सुना है। Now he had a nephew, his name was Lot. और उसका एक नेफ्यू था, उसका नाम था लूत। And he was taken as a prisoner. और उसको पकड़वा दिया गया था। Now Abraham went with 300 of his men
and went and set them free. और अब्राहम अपने 300 लोगों के साथ गया और उसको आजाद करवा के लेके आया। And they had victory over 4 kings at that time. और उस समय उन्होंने 4 राजाओं के ऊपर अपने विजय को पाया था। Now, as they were returning after that victory, और जैसे वो अपनी विजय को पाके वापस आ रहे they थे, were carrying all the plunders of that victory with them. और वो अपनी सारी लूट को जो उन्होंने उस विजय से पाई थी उसको लेके आ रहे थे। And along the way, Bible says Abraham met Melchizedek. और वहां पे जब अब्राहम लौट के आ रहा था तो वो मलकीजेदेक से मिला। Now, Melchizedek was a symbol. He was a high priest, but it symbolizes Jesus Christ. और मलकीजेदेक जो था वो उस समय का महायाजक था और वो यीशु मसीह को भी दर्शाता है वचन के अंदर। You can read it more in details when you go home. आप इसको और वचन में गहराई से भी पढ़ सकते हैं। But I want to tell you that Abraham was a generous person. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब्राहम जो था वो एक बहुतायत से देने वाला था। Bible said he gave a tenth of all that he had plundered. और उसने वचन कहता है कि उसने जो 10वां हिस्सा था, जो भी उसने पाया था, जो भी उसने इकट्ठा किया था, उसका मलकीजेदेक को दे दिया। He didn't need to do it. उसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, No one asked him to do किसी it. ने उसको बोला नहीं था, But because he was generous, he sowed a tithe of all that he had plundered. और उसने जब किसी ने उसको बोला नहीं था, पर जो भी उसने कमाया था, क्योंकि उसके अंदर बहुतायत का दिल था, उसने उसका 10वां हिस्सा मलकीजेदेक Now, को दे if you दिया। go next generation, Abraham had Isaac, Isaac had Jacob, Jacob had Levi. और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि अब्राहम का पुत्र आइजक था, आइजक का बेटा जेकब था, और जेकब का लेवाई थे, लेवी थे। 4 generations down, we see a blessing now. और हम 4 जो पीढ़ियां हैं उसमें नीचे अगर आप आते हैं तो उसमें एक आशीष देखते हैं। Now, Levi was somehow cursed because of his anger issues. और जो लेवी था वो अपने जीवन में शापी था क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता था। And Levi, as we see from the Bible, they are also known as the priestly tribe. और यहाँ पे जब हम लेवी को देखते हैं तो वो एक महायाजकों की एक ट्राइब थी उस समय But की। before they became a blessing, they were actually a curse. वो आशीष बनने से पहले वो एक शाप थे। But Levi, because of what Abraham did 4 generations before, he was born with a blessing which turned his curse into a blessing. पर जो कि लेवी जो था वो अब्राहम की उस पीढ़ी में से था, तो जो चीज उसके जीवन में शाप थी वो एक आशीष बन गई। So sometimes when you start a blessing, Bible says it goes into 1,000 generations for righteous people. और वचन कहता है जब आप एक आशीष की शुरुआत करते हैं तो आने वाली हजारों पीढ़ी तक वो चलती चली जाती है। In the same way we see David. और David says, my cup overflows. इसी तरह हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Now, we know that David was a rich king and his cup was overflowing, but what he meant was not only for his life, but for generations to come, the blessing will flow. और सिर्फ दाऊद ने ये नहीं कहा जब उसने कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसने कहा सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए नहीं, पर जो पीढ़ी आ रही है उनके जीवन में भी आशीष बहती रहेगी। And if you read in the future, we see Solomon, King Hezekiah, they were blessed. Why? Because David started a blessing. अगर हम भविष्य में भी उसके बाद देखते हैं तो यही हुआ कि जो सोलोमन था, किंग जो दूसरा राजा था, उनके जीवन में भी आशीष आती रही क्योंकि दाऊद ने आशीष की शुरुआत करी थी। I'm trying to keep it short, but you can go home and read more about it. मैं इसको छोटा रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप घर जाके इसको और पढ़ सकते हैं, समझ सकते And हैं। today is a seed offering Sunday. तो आज एक बीज की भेंट बोने वाला रविवार है। Today you can start a blessing in your life. आज के दिन आप अपने जीवन में एक आशीष की शुरुआत कर I सकते would हैं। like to say 3 short points. और मैं 3 छोटी बातें बताना चाहती हूँ First is sow a seed. कि एक बीज को बोएं। Now, usually we've heard, when should you have planted a mango tree? कि आपको कब एक आम के पेड़ को बोना है? You should have planted it 20 years ago. आपको उसको 20 साल पहले बोने की जरूरत थी। If you want to eat today, you should have planted 20 years ago. अगर आपको अपने आम के पेड़ से फल खाने हैं तो आपको उसको 20 साल पहले बोना चाहिए था। But you know what? You can start one today. कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आज एक शुरू कर सकते हैं। Now, in this lockdown season, lot of people did gardening.
और बहुत सारे लोग हैं इस लॉकडाउन के समय उन्होंने गार्डनिंग करी घर में। I've seen people doing lots of sowing seeds and reaping a harvest. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो छोटे छोटे बीज बो रहे हैं और उसमें फल देख रहे हैं। And some people sowed it and didn't see any fruit at all. और बहुत सारे लोगों ने बीज बोए उनको कोई भी फल नहीं मिला। I tried to plant a few and I thought they were all dead because I couldn't see the fruit at all in first 3 months. और जब मेरे को लगा जो मैंने बोए थे वो पहले 3 महीने में उनमें कोई फल नहीं आया, मुझे लगा वो खत्म हो गए हैं। I was so frustrated. I really wanted to cry and said, probably I don't have this gift of doing gardening. और मुझे लगता था कि मैं इतनी ज़्यादा उदास हो गई, मैंने कहा मैं शायद मेरे अंदर गिफ्ट नहीं है गार्डनिंग करने का। But this scripture in Psalms 126:5 says, those who sow with tears will reap songs of joy. और वचन कहता है कि जो भी आंसुओं में बोता है वो आनंद में काट नहीं पाएगा। Now sowing requires hard work. और जो बोना है वो बहुत ज़्यादा मेहनत को पाता है। The farmer just doesn't go and throw the seed in the air. जो फार्मर होता है वो जाके हवा में ऐसी बीज नहीं फेंक He देता है, has to work hard. उसको मेहनत करनी पड़ती है। Even in life, to start anything new, you have to work hard. और अगर आपको जिंदगी में कुछ नया शुरू करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है। Even in a marriage, you have to work hard. और एक शादीशुदा जीवन में भी आपको बहुत मेहनत When करनी you है। have a new baby, you have to work hard. जब आपका एक नया बच्चा होता है तो आपको बहुत मेहनत करनी When पड़ती you है। start a business, you have to work hard. जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होती है। Even when I was doing my PhD, I had to work really hard. और जब मैं अपनी PhD कर रही थी तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। We have to sometimes be, it is so hard, you cry actually out of frustration. और ये कभी कभी इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में रो दे भी देते हो। But the Bible says when you sow in tears, you will reap with joy. पर वचन कहता है जब आप आंसुओं में बोते हो तो आप आनंद में काटते हो। Even today, as we sow in our finances, और आज भी जब हम अपने फाइनेंसेस में बोते हैं, we may not have everything, हमारे पास सब कुछ नहीं होगा, but we are saying to the Lord, Lord, we are sowing into your kingdom. पर हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे भवन में बो रहा हूँ। It might look very hard. How will I take care of my expenses, my needs? और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा और मैं कैसे अपने खर्चों को संभाल पाऊंगा। Now I want to share a testimony. You see all these microphones, the drum set, the keyboard. When we started this church, we didn't have any of these. अगर आप यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ देखें, माइक्रोफोन, ड्रम सेट, अगर आप स्पीकर देखेंगे, कीबोर्ड देंगे, जब हमने कलीसिया की शुरुआत करी थी ये कुछ भी नहीं था। We had nothing. We had to actually rent it out. और हमें हर एक चीज़ को किराए पे हम लोग मंगवाते थे। Bijoy is a witness. He will tell you. और बिजॉय जो है वो इस बात का गवाह है, वो इस बात को जानता है। So Pastor John and I decided, because we wanted to buy things for our church, we said before we do, we want to sow into another church that is struggling. तो हमने जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हमने इस बात को परमेश्वर के आगे रखा कि इससे पहले कि हम अपने लिए प्रार्थना करें और मांगे, हम किसी और कलीसिया में बोएंगे जो खुद से स्ट्रगल कर रहा हो इन चीज़ों में। So as a church, we collected and we bought a keyboard for another church that needed one. और तो हम लोग ने एक कलीसिया के तौर पे हम लोग ने पैसे इकट्ठे करके फिर उसके बाद हमने कीबोर्ड खरीद के एक ऐसी कलीसिया को दिया जिनको उसकी ज़रूरत थी। And within next 3-4 months, suddenly people came to us and said, this is the money for the speakers, for the keyboard, for the drum set, and today we have everything we need. और उसके कुछ ही महीने बाद हमने देखा कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा ये लीजिए पैसे और आप अपने लिए स्पीकर, अपने लिए ड्रम सेट, अपने लिए कीबोर्ड और ये सब चीज़ें लीजिए। Suddenly it happened. और ये अचानक से हुआ। The secret was to sow. और जो इसका सीक्रेट था वो था बोना। Even though we didn't have, we decided to sow. और हमारे पास नहीं था पर हम लोग ने चुना कि हम बोएंगे। So today I want to encourage you. तो आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। So today in 2 Corinthians 9:6 it says, those who sow sparingly will reap sparingly, and whoever sows generous will also reap generously. और दूसरे कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा है कि जो भी उसके 9:6 में लिखा है, परंतु बात ये है जो थोड़ा बोते हैं वे थोड़ा काटते भी, और जो बहुत बोते हैं वो बहुत काटेंगे भी।
You can give a teaspoon level and receive a teaspoon blessing. और शायद आप एक चम्मच भर बो सकते हैं और एक चम्मच भर काट सकते Or हैं। you can give a harvest and reap a harvest. और शायद आप एक बहुतायत से बो सकते हैं और आप एक बहुतायत से काटेंगे भी। But I know one thing for sure. पर मैं एक बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, When you give to God, जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं, God doesn't work like our maths. परमेश्वर हमारी गणित के हिसाब से काम नहीं करता। He gives you abundantly, वो हमें बहुतायत से देता है pressed down, और वो दबा दबा कर shaken together, और उसको हिला हिला कर overflowing. और बहुतायत से उमड़ता हुआ। That is the God we serve. और ये परमेश्वर है हमारा जिसको हम So सेवा करते हैं। today sow in faith. तो आज के दिन विश्वास में बोएं। Second is sow in the right ground. कि दूसरा है सही भूमि में बोने की जरूरत है। Like the Bible says that there was a farmer who went and sowed, and some fell in hard soil, और- some fell in shallow soil, and some fell in good soil. और एक जैसे बीज बोने वाला था, जब वो बीज बोने निकला तो कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ बीज कंटीले भूमि पे गिरे। Now the good soil here is the church. और जो अच्छी भूमि है वो कलीसिया है। The storehouse is your local church. और जो आपका स्टोर हाउस है वो आपकी लोकल कलीसिया है। The house that feeds you spiritually is your storehouse. और जो घर आपको आत्मिक तौर से बढ़ोतरी देता है वो आपका स्टोर हाउस है। It's a good soil for you. और वो आपके लिए एक अच्छी मिट्टी है। So know your good soil and sow in it. तो अपनी अच्छी मिट्टी को जाने और उसमें बोएं। And the last point is sow in faith. और जो आखिरी पॉइंट में देना चाहती हूँ वो है विश्वास में बोएं। Now, opposite of faith is fear. जो विश्वास का जो विपरीत है वो है डर। Don't be afraid to sow, आप बोते समय कभी भी डर ना रखें, especially in this season where we are struggling, people are struggling because of COVID reasons. Don't have a fear, but have faith and sow. और खासकर इन समय के अंदर, कोविड वाले समय के अंदर जब लोग घबरा रहे हैं चीज़ों को लेके, मैं आपको बताना चाहती हूँ किसी चीज़ को लेके डर ना रखें, विश्वास में बोएं। God is a God of breakthrough. परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर He है। will break through in your finances. वो आपके आर्थिक चीजों में एक बहुत बड़ा छुटकारा देगा। He will break through in your relationships. वो आपके रिश्तों में एक बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू देगा। He will break through in your family. वो आपके परिवार की चीजों में एक बड़े छुटकारे को देगा। So today start a blessing. तो आज के दिन एक आशीष की शुरुआत करें। You can also start a blessing by coming to church regularly. आप एक आशीष की शुरुआत कर सकते हैं कलीसिया में निरंतर आने के You द्वारा। can start a new relationship with God. आप परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता शुरुआत कर You सकते can हैं। start a blessing for your future. आप अपने भविष्य के लिए एक आशीष की शुरुआत कर सकते हैं। Let's start passing down good things to our future generation. हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी चीज को बहने दें। Like Abraham gave generously. जैसे अब्राहम ने बहुतायत से दिया, Let's make it easier for those who are going to come after us. तो उन लोगों के लिए आसान कर दे जो हमारे बाद आने वाले हैं। If you all do this, I believe God will show it to you. Bible says that you, the righteous, will see the blessings of their great grandchildren. और जैसे वचन कहता है कि धर्मी जन जो है अपने पूर्वजों की आशीषों को देखेंगे, वैसे ही आपके जीवन में भी आप देखेंगे। So I would like to finish with this. और इसके साथ मैं खत्म करना चाहती हूँ I would say start a blessing today. और मैं कहना चाहती हूँ कि आज एक आशीष की शुरुआत करें। Decide in your heart अपने दिल में इस बात का निर्णय करें, what is right for me, what is wrong in the sight of God. और मेरी शायद नजरों में ठीक है पर परमेश्वर की नजरों में शायद वो गलत है। I've heard this quote a lot where they say, if life throws you lemon, make a lemonade. और मैंने एक कोट बहुत सुना है, वो इस प्रकार से, अगर जिंदगी आपके ऊपर नींबू फेंके तो उसकी शिकंजी बना लो। But I also heard this quote, when life throws you dirt, पर मैंने एक और कोट सुना है कि कभी कोई आपके ऊपर मिट्टी फेंकता है, or when life throws you soil technically, जब जिंदगी आपके ऊपर मिट्टी फेंकती है plant a seed. तो उसमें बीज डालें। So today we might have rough situations around us, तो शायद आज के दिन हमारे पास कोई रफ सिचुएशंस हो सकते हैं, but today plant a seed. पर आज के दिन एक बीज को So बोएं। be encouraged तो उत्साहित हों, and start a blessing तो today. आज एक आशीष की शुरुआत करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Come on, can we give Pastor K a good round of applause today?